Hello dear students, welcome in science class. I hope you all are well and doing well at your places. Okay, so students, yesterday we have started with the topic salts and we have done the preparation of sodium hydroxide by the process of chlor-alkali process. Okay, in which other two products that are formed, chlorine and hydrogen, that are also very useful. Students, do you know that what is the common name for sodium hydroxide? NaOH. The common name for NaOH, that is caustic soda. Caustic soda. CaUSTIC, caustic soda. Okay, this is the common name for NaOH and the chemical name is sodium hydroxide. Okay, so students, today we will learn more about the various salts, their uses and their preparations also. Okay, but before that I would like to share the learning outcomes that you are going to achieve after completing this topic. You will be able to list the various uses of the salts. You will be able to define the water of crystallization after completing it. Okay, so let's start with the today's topic, that is with the various other salts that we can get from our raw material NaCl. Okay, sodium chloride. So our next salt is bleaching powder. Bleaching powder. Okay, this is the common name. The chemical name of bleaching powder is calcium oxychloride. Okay, the chemical name for bleaching powder is calcium oxychloride. So the chemical formula is CaOCl2. Okay, the chemical formula is CaOCl2. Now, let us find out the formation of bleaching powder. ठीक है, how it is formed, बनता कैसे है ये. सो स्टूडेंट्स, क्या होता है, जो आपका क्लोर अल्कली प्रोसेस में दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस, दैट इज यूज्ड फॉर इट्स प्रेपरेशन. जो क्लोरीन उधर क्लोर अल्कली प्रोसेस में बन रही थी ना बेटा जी, दैट इज यूज्ड फॉर इट्स प्रेपरेशन. बट हाउ, कैसे यूज करते हैं? सो हम क्या करते हैं, वी विल पास क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक्ड लाइम. ठीक है, स्लेक्ड लाइम. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लेक्ड लाइम? स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम. ठीक है, वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर व्हेन वी ऐड क्विक लाइम इन वाटर, देन स्लेक्ड लाइम विल फॉर्म. तब स्लेक्ड लाइम बनता है. ठीक है, वो सॉल्यूशन है, ये ड्राई है. एंड व्हेन वी पास क्लोरीन गैस ओवर दिस स्लेक्ड लाइम, इट विल फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर. CaOCl2 ये बनाता है ये. ओके, दिस इज द स्लेक्ड लाइम, ये आप यहाँ लिख सकते हैं. अब अलोंग विद दिस क्या बनेगा? Cl भी आपका प्रोडक्ट साइड में आ गया, कैल्शियम आ गया, O तो चलो है, H रह गया. इट विल रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वाटर. सो अलोंग विद दिस ब्लीचिंग पाउडर वाटर बनता है. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. If the question may be asked in the exam to write down the reaction for the preparation, then you will write this one. Or how it is formed. अगर how it is formed पूछा जाता है तो then you can also write down the equation. In words खाली लिखना ज़रूरी नहीं है. You have to write down the equation also. Okay. So how it is formed? When we pass chlorine gas over dry slaked lime, it will form bleaching powder. Okay, calcium oxychloride. And this reaction is already balanced.
Okay, so now come to the next point, that is, students, when this bleaching powder is exposed to air, it will gives the smell of chlorine. ठीक है, जब ये ब्लीचिंग पाउडर एयर में आप इसको अगर ऐसे रख दो ना, तो इट विल गिव द स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस. क्यों देता है? इसलिए देता है कि इन एयर इट विल रिएक्ट विद ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद CO2 present in the air and it will form CaOCO3, that is calcium carbonate plus chlorine gas. ठीक है, तो ये क्लोरीन गैस इसमें से लिबरेट होती है व्हेन इट एक्सपोज्ड टू एयर एज इट कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये क्लोरीन गैस एक्सपोज होती है, दैट्स वाई इट विल गिव द स्मेल ऑफ क्लोरीन. ओके, अंडरस्टूड? ठीक है, क्या कहा हमने कि इसमें से क्लोरीन की स्मेल क्यों आती है व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर? बिकॉज ऑन रिएक्टिंग विद CO2 प्रेजेंट इन द एयर इट विल गिव Cl2. ठीक है, Cl2 इसमें से लिबरेट होती है और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है. नेक्स्ट सी द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ओके, the first one, it is used for bleaching cotton, linen, okay, in textile industries, for bleaching wood pulp in paper making industries, and for bleaching the washed clothes in the laundry also. okay, बेटे कोई स्टेन लग जाता है, वाइट क्लोथ्स होते हैं जो लाइट शेड्स होते हैं, मेनली ये ब्लीच करने का मतलब है उसका कलर वाइट कर देता है, लाइटन कर देता है. ओके, सो रिमूव द स्टेन्स वी कैन ऑल्सो यूज ब्लीचिंग पाउडर. It is also used as an oxidizing agent in many chemical industries. What is oxidizing agent? कौन होता है oxidizing agent? That helps in the oxidation of others but itself get reduced. Agent है ना, मतलब help करता है दूसरों की किस में help करता है? Oxidation में. That's why it is said to be oxidizing agent. Okay, and this bleaching powder is also used to make the drinking water free from germs. That is, it is also used as disinfectant. Okay, to clean the water, to kill the germs. Okay, so this is about the bleaching powder. Now our next salt is baking soda. Okay, baking soda क्या है? Baking soda, the chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate. ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप और क्या बोल देते हो? दैट इज HCO3 नेगेटिव. इसको आप हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हो या बाइकार्बोनेट आयन भी बोल देते हो. अगर सोडियम करना है तो Na पॉजिटिव आ जाएगा. तो क्या बन गया? फॉर्मूला क्या हो गया? द केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया बेटे? दैट इज NaHCO3. ओके, सो दिस इज कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा. इट इज यूज्ड फॉर फास्टर कुकिंग. ठीक है, इनको फास्टर कुकिंग के लिए यूज किया जाता है. किचन में भी यूज किया जाता है फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास. तो एग्जाम में जब पूछा जाएगा ना क्वेश्चन, तो हिंट दिया जाएगा. आइडेंटिफाई द सॉल्ट और नेम द सॉल्ट दैट इज यूज्ड फॉर फास्टर कुकिंग और फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास. ओके, सो दैट इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा. नाउ हाउ इट इज फॉर्म्ड, ये बनता कैसे है? फॉर इट्स प्रेपरेशन NaCl इट्स यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल. ठीक है, NaCl यहाँ पे यूज किया जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड अमोनिया. I told you what is ammonia, that is NH3, ammonia gas. Okay, then all these
कंपाउंड्स कंबाइंस, जब इनके बीच में रिएक्शन होता है, देन दे विल गिव सोडियम बाइकार्बोनेट एंड NaH, ओके, C सब आ गए हैं. व्हाट इज लेफ्ट? अमोनिया गैस रह गई है और Cl रह गया. सो दे विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम क्लोराइड. NH4 positive ion and Cl negative, the formula will be NH4Cl. ठीक है. सो इस तरह से आपका क्या बनता है? बेकिंग सोडा बनता है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है. एंड व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जिसमें बेकिंग सोडा बनता है? दैट इज नोन एज सोल्वे प्रोसेस. ओके, सोल्वे प्रोसेस. और इसको क्या कह देते हैं? अमोनिया सोडा प्रोसेस. अमोनिया सोडा प्रोसेस. ओके, व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस रिएक्शन? सोल्वे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस. ठीक है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा. अब आप इसको यूज करते हो किचन में. ठीक है. अच्छा, आपको याद है बेटे, हमने बेकिंग सोडा पहले भी डिस्कस किया हुआ है. इट इज स्लाइटली माइल्ड बेस. ओके, इट इज यूज्ड अगेंस्ट एसिडिटी. ठीक है, या कहीं आपको क्या हो जाता है, एसिडिटी के लिए भी हम यूज करते हैं, या फिर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ स्टिंग ऑफ हनी बी. ठीक है, मिथेनोइक एसिड वो सिक्रीट करता है. वी हैव डिस्कस्ड दिस ऑल. सो आपको पता होना चाहिए बेकिंग सोडा इज स्लाइटली अल्केलाइन इन नेचर और इट्स अ माइल्ड बेस. ओके, सो व्हाट हैपन्स व्हेन वी विल हीट इट? क्या होता है जब आप इसको हीट करते हो? सो व्हाट हैपन्स व्हेन वी विल हीट इट? जब आप इसको किचन में यूज़ करते हो और कुकिंग में जब आप इसको हीट करते हो, सो इट विल डिकम्पोज. टूट जाएगा, पर टूट के क्या क्या बनेगा? इट विल फॉर्म Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ओके, सो इट विल फॉर्म क्या क्या बनाएगा बेटे? सोडियम कार्बोनेट. इट विल डिकम्पोज इनटू सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. Okay, so this is the reaction when this baking soda will heat. ठीक है, यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो आपके पकौड़ास को या आपके जो मटेरियल्स हैं उनको वो फ्लफी और थोड़ा बहुत स्पॉन्जीनेस प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट, लेट्स डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा. ओके, the first one, it is used for making baking powder. Okay, it is used for making baking powder. आपने सुना होगा ना, दो तरह के सॉल्ट्स घर में यूज़ किए जाते हैं. कई बार बेकिंग पाउडर यूज़ किया जाता है, कई बार बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है. ठीक है बेटे, बेकिंग सोडा ना मे भी आपने कभी सुना होगा, जो बाहर हलवाई चने बनाते हैं ना, वाइट चने जो बनाते हैं, उनको भी जल्दी पकाने के लिए दे आर यूजिंग दिस सोडा. ठीक है, वो उसमें वो सोडा मिला देते हैं एंड वो अच्छे से फूल जाते हैं और जल्दी बन जाते हैं. ठीक है, जैसे हम घर में क्या करते हैं, उसको रात को भिगो के रखते हैं. दे कैन यूज़ सोडा. वो सोडा यूज़ करके जो है वो उसको जल्दी पका लेते हैं चनों को. ओके, सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर. अब बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर क्या है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड, जो आप खा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल टार्ट्रिक एसिड. ठीक है, बेकिंग पाउडर कब बनता है? जब आप बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड को मिक्स कर देते हो. द फॉर्मूला ऑफ टार्ट्रिक एसिड इज C4H6O6. ओके, तो जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे आपका क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर बन जाएगा. ठीक है,
तो आप इसको कहाँ यूज़ करते हैं? बेकिंग पाउडर को आप कहाँ यूज़ करते हो? इन द बेकरी प्रोडक्ट्स, जो आपने बेकरी चीज़ें बनानी है, केक बनाना है, ठीक है, ब्रेड बनानी है, उसके लिए आप इसको यूज़ करते हो, ओके, टू मेक द बेकरी आइटम्स. नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन वी विल हीट इट? अब क्या होगा? कुछ तो डिफरेंस होगा ना जब आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को हीट करेंगे. सो लेट्स सी द डिफरेंस. दिस इज NaHCO3 कहाँ से लिया गया है? बेकिंग सोडा से. प्लस अब बेटे हम इसका पूरा एसिड का फॉर्मूला ना लिख के हम सिर्फ इसका क्या लिख रहे हैं? H पॉजिटिव आयन, दैट इंडिकेट्स कि इट इज टेकन फ्रॉम एसिड, वो एसिड का पार्ट है. सो आप इस पूरे को ऐसे लेबल करके लिख सकते हैं, इट्स अ ब्लीचिंग पाउडर. ओके, आप इसको क्या लिख सकते हो? ब्लीचिंग पाउडर. नाउ व्हाट हैपन्स ऑन हीटिंग इट? तो आप हीट का साइन लगाएंगे, इट विल डिकम्पोज, टूटेगा तो सही, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा. सो व्हाट विल हैपन? CO2 बनेगी, वाटर प्लस जो सॉल्ट बनेगा दैट इज ऑफ दिस एसिड, जो ये एसिड है इसका सॉल्ट बनेगा. सो वी विल राइट, सोडियम के साथ बनेगा क्योंकि कार्बन भी निकल गया, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन सब चले गए. नाउ द सोडियम इज लेफ्ट एंड द पार्ट ऑफ एसिड इज लेफ्ट, सो दे विल कंबाइन एंड फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड. ठीक है, क्या बनाएगा ये? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड. ठीक है. सो ऑन हीटिंग ब्लीचिंग पाउडर, दिस H पॉजिटिव बेटे कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम द एसिड. ठीक है, इसको याद रखना है. दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर. आप इसको हीट करते हो, यू विल गेट CO2, वाटर बनता है, और साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है. बेटे दिस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मेक द ब्रेड, केक, जो डो होता है उसको वो क्या बना देता है? स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना देता है. आपका केक जो फूल जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, वो इसी की वजह से हो जाता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इट विल मेक द डो और द जो आपका ब्रेड है, केक है, उसको वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देता है. अंडरस्टूड? ओके. सो बेटे अब क्या होगा अगर आप बेकिंग पाउडर की जगह पे केक में बेकिंग सोडा डाल दोगे? देन व्हाट विल हैपन? गलती से मान लो मम्मा केक बना रहे हैं और उन्होंने बेकिंग पाउडर डालना था और बेकिंग सोडा डाल दिया, तो क्या होगा? हाँ जी बेटे, व्हाट विल हैपन? अगर आप बेकिंग पाउडर की जगह पे बेकिंग सोडा डाल दोगे केक बनाने के लिए, ठीक है, एज आई टोल्ड यू, व्हेन वी विल हीट बेकिंग सोडा, जब आप बेकिंग सोडा को हीट करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनती है, पर यहाँ पर क्या बनता है? Na2CO3 बनता है. इट इज़ बिटर इन टेस्ट. ठीक है, ये बिटर होता है इन टेस्ट. अब बेटे एक चीज़ और है, इसको आप यूज़ करते हो फॉर मेकिंग द वॉशिंग सोडा. बात समझ गए? क्योंकि इसकी वॉशिंग प्रॉपर्टीज़ है, इसको वॉशिंग सोडा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए ये बिटर इन टेस्ट भी है. ठीक है, तो अगर आप केक में ये डाल दोगे तो आपका केक कैसा हो जाएगा? बिटर हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा. ठीक है, सो इसीलिए आप क्या डालते हो उसमें? एसिड वाला पाउडर लेते हो, दैट इज़ द बेकिंग पाउडर. इस एसिड का फंक्शन ही यही है, ये नहीं बनेगा, ये चीज़ बनेगी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, एंड दैट डू नॉट मेक्स द केक बिटर. वो केक को बिटर नहीं बनाएगा. बात समझ गए? क्योंकि जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो Na2CO3 बनता है, इट इज़ हैविंग द वॉशिंग प्रॉपर्टीज, और इसको वॉशिंग सोडा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. अदरवाइज ऑल्सो इट इज़ बिटर इन टेस्ट. ठीक है, तो ये जो एसिड है ये प्रोडक्ट नहीं बनने देगा. सो आप क्या कह सकते हो कि इसीलिए हम इसको बेकिंग पाउडर को यूज़ करते हैं, ओके, फॉर मेकिंग केक्स एंड ब्रेड. ओके, द नेक्स्ट वन इज इट इज़ यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स. जो एंटासिड्स होते हैं उसमें बेकिंग सोडा को यूज़ किया जाता है. सो रिएक्शन क्या होएगी? एंटासिड्स अगेंस्ट द एसिडिटी.
एसिडिटी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द मोर प्रोडक्शन ऑफ HCl. सो बेटे NaHCO3 और HCl के बीच में क्या रिएक्शन होगी? दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट विद एसिड. तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो ये रिएक्शन होती है तो दैट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एसिड. एसिड के इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज कर देता है बाय फॉर्मिंग NaCl, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अंडरस्टूड? द नेक्स्ट वन इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स. ठीक है, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनमें सोडा और एसिड, बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड यूज किए जाते हैं. ठीक है, तो क्या रिएक्शन होता है वहां पे? सो क्या होगा? NaHCO3 बेकिंग सोडा प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, अगेन इट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट विद एसिड. क्या बनेगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो दैट विल एक्सटिंग्विश द फायर. ओके, सो इट विल फॉर्म Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस carbon dioxide, and this carbon dioxide along with this water they will release and helps in extinguishing fire. Okay, look at here students, this is the diagram of soda acid fire extinguisher. Okay, in this tube sulfuric acid is there and outside this is the sodium hydrogen carbonate. Okay, here the sodium carbonate is written. So student, the reaction will take place in the same manner, है ना? एक जैसे ही रिएक्शन होएगा, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी. सो एट द टाइम ऑफ नीड, जब आपको ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे? वी विल प्रेस द हैंडल फ्रॉम हेयर एंड द बॉटल विल ब्रेक and there is the reaction, this bottle will break and there is the reaction between acid and this salt. Okay, this salt solution रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड विल रिलीज और इस नोजल की हेल्प से आप कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रे कर देते हो. ओके, सो इन दिस वे दिस सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर वर्क्स. So this is all about the uses of baking soda. One, it is used for making baking powder. Second, it is used as an ingredient in antacids. And third, it is used in soda acid fire extinguishers. Okay, now move to the next salt, that is washing soda. बेटे washing soda जो है it's a crystal. ठीक है, आपको क्रिस्टल का मीनिंग बताते हैं. क्रिस्टल मीन्स हैविंग अ रेगुलर शेप. जो इनमें आयंस हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, दे अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न. ठीक है, वो अरेंज्ड कर लेते हैं अपने आप को, तो जिसकी वजह से इनको एक रेगुलर शेप मिल जाती है. दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टल. फॉर एग्जाम्पल शुगर क्रिस्टल्स. जो शुगर है उसमें आपने देखा होगा जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर हैविंग देयर शेप्स. ठीक है, सो दे आर द क्रिस्टल. सॉल्ट NaCl दैट इज ऑल्सो अ क्रिस्टल. तो जो इसको रेगुलर शेप मिलती है आप उसको क्रिस्टल बोल देते हो. ओके, और ये किसकी वजह से मिल रही है इनको? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन इट. इनमें कुछ अमाउंट ऑफ क्या होता है? वाटर होता है, जो इसको हेल्प करता है ये शेप प्रोवाइड करने में. अंडरस्टूड? सो इसी वजह से अभी जो हम फॉर्मूला लिखेंगे ना वॉशिंग सोडा का, लुक एट हेयर केयरफुली. इट इज वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 डॉट 10H2O. ये डॉट 10H2O क्या रेफर कर रहा है? ये डॉट 10 रेफर कर रहा है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं जो इसमें इसको एक क्रिस्टलाइन शेप देने में हेल्प करते हैं. दैट इज 10 वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसमें? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो इस सोडियम कार्बोनेट को
क्या देने में, एक क्रिस्टलाइन शेप देने में हेल्प करता है। तो इस 10 को आप बोलते हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको आप क्या कहते हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, दिस 10 मीन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, चलो वॉशिंग सोडा करने से पहले हम यही अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इट इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर present in 1 formula unit of salt। एक मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट के साथ जितने नंबर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, दैट नंबर इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसको आप क्या कहते हो, दैट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड crystallization। okay, the fixed number of water molecules, ठीक है। सो यहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है इसमें, वॉशिंग सोडा में, दैट इज 10 Na2CO3 डॉट 10H2O। सो आप इसको क्या कहते हो, व्हाट इज द केमिकल नेम, अब वो लिखते हैं। द केमिकल नेम इज, देखो फॉर्मूला क्या था इसका, चलो केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका, दैट इज Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है। तो केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ये वाला ऐसे ही है, सोडियम कार्बोनेट। ओके, 10 के लिए हम लिखेंगे डेका, और वाटर H2O के लिए हम लिखेंगे डेका हाइड्रेट। सो इसका केमिकल नेम क्या हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका रेफर्स टू 10 एंड हाइड्रेट रेफर्स टू H2O। और जर्नली आप क्या कह सकते हो इसको, कि इट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट। ओके, इट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट, आप जर्नली ये भी कह सकते हो, Na2CO3। और अगर इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, ठीक है, इसमें से ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए आपने, हीट करके रिमूव कर दिए, तब आप इसको क्या कहोगे, एनहाइड्रस सॉल्ट। क्या कहोगे, एनहाइड्रस सॉल्ट। सो एनहाइड्रस Na2CO3 को आप कॉमनली बोल देते हो सोडा ऐश, ठीक है। क्या कह देते हो आप उसको, सोडा ऐश। Anhydrous Na2CO3 is also known as soda ash, आप इसको सोडा ऐश बोल देते हो। क्लियर है, नेम, फॉर्मूला और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्लियर है बेटे, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन करते हैं, ये प्रिपेयर कैसे होता है। अभी आपने पीछे किया था ना कि व्हेन वी विल हीट सोडियम बाइकार्बोनेट, जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो Na2CO3 बनता है, ठीक है। इसी Na2CO3 को जब आप हाइड्रेटेड कर दोगे, ये एनहाइड्रस है, जब आप इसको हाइड्रेटेड कर दोगे मीन्स जब आप इसमें जितने रिक्वायर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उतने आप डाल दोगे, देन आपके पास क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा। ओके, क्लियर हो गया। क्या कहा हमने, जो आपके पास बेकिंग सोडा को हीट करके Na2CO3 बना था, दैट इज एनहाइड्रस, उसको आप हाइड्रेटेड बना दोगे, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दोगे, देन इट इज वॉशिंग सोडा, Na2CO3 डॉट 10H2O। अंडरस्टूड। So uses of washing soda, it is used in glass, soap and paper industries. It is used in the manufacture of sodium compounds such as borax. Okay, BORAX, it is borax. Okay, it is the common name. Okay, and the chemical name is sodium tetraborate.
Okay, the chemical name is sodium tetraborate. दिस इज द कॉमन नेम बोरेक्स. ठीक है, इसको हम क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. एंड दिस वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो यूज्ड एज एन क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, एज द नेम इज वॉशिंग सोडा, वॉशिंग के लिए. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स. ठीक है, जब वाटर में उनका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, किसका, मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स का अमाउंट जब वाटर में ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको क्या कहते हो, हार्ड वाटर कहते हो. ठीक है, आप उसको क्या कहते हो, हार्ड वाटर. सो इसको रिमूव करने के लिए वी विल यूज वॉशिंग सोडा. सो दीज आर द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. ओके, अब बेटे आप कैसे बता सकते हो कि किसी सॉल्ट में वाटर है या नहीं है. ठीक है, for example we will do one activity. So students, to show that there is a water present in salt. ठीक है, आपको वो वेट तो नज़र आ नहीं रहा, आपको वो लिक्विड नहीं नज़र आ रहा, दैट इज सॉलिड. तो आप कैसे बोल सकते हो कि उसमें वाटर है. वी विल टेक दिस कॉपर सल्फेट. ठीक है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है. दिस ब्लू कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स इन इट. 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. ठीक है, सो क्या होगा जब आप इसको हीट करोगे, व्हेन वी हीट इट, इसका कलर चेंज हो जाता है, इट विल बिकम वाइट. वाइट हो जाता है एंड यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व वाटर वेपर्स इन द टेस्ट ट्यूब. आपको वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, नॉट वाटर वेपर्स, आपको वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो टेस्ट ट्यूब में नज़र आएंगी. सो वो वाटर कहाँ से आया है, दैट इज़ फ्रॉम द सॉल्ट. जो इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो इसने लूज कर दिए. ठीक है, तो जिसकी वजह से इसका कलर क्या रह गया, वाइट. अब आप क्या करो, जैसे ही आपने इसको हीट किया, वाटर इसने रिमूव कर दिया. अब आप इसमें थोड़ा सा पानी दोबारा ऐड कर दो, 2 और 3 ड्रॉप्स यू विल ऐड इट. ठीक है, आप डालोगे तो क्या होगा, अगेन इट विल बिकम ब्लू. ठीक है, तो दैट मीन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट वाटर मॉलिक्यूल्स इसका ब्लू कलर था. इसकी क्रिस्टलाइन नेचर भी उसी की वजह से थी. अंडरस्टूड. सो इन दिस वे वी कैन से दैट द वाटर इज देयर इन द सॉल्ट्स. जो आपको ड्राई लग रहे हैं, ठीक है, उनमें भी क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, बट दैट वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके स्टूडेंट्स, एज वी हैव सीन इन द एक्टिविटी, ठीक है, कि सॉल्ट्स में वाटर होता है. ओके, जो आपको ड्राई लगते हैं, दैट आर ऑल्सो हैविंग वाटर इन दैम, एंड दैट वाटर इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट गिव्स अ क्रिस्टल शेप टू द सॉल्ट. ठीक है, इनको कलर भी प्रोवाइड करता है. ओके, सो लेट्स वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. नाउ लेट्स सी the more examples of salts that are having water of crystallization. Na2CO3, 10H2O, it's washing soda, it's we have discussed. Okay, so students, what happens when we exposed this washing soda to air? ठीक है, so on exposing to air it will lose water. ये water loss कर देता है. So 9 water molecules it will remove और 1 इसके पास रह जाता है, तो ये क्रिस्टल से क्या बन जाता है, पाउडर शेप बन जाती है. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर ऑन एक्सपोजिंग टू एयर इट कॉज, दिस इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस. EFFLORESCENCE. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस. Okay, the another example as we have seen in the activity, that is the copper sulfate with 5 water molecules. 5 is the water of crystallization. Commonly it is known as blue vitriol and its chemical name is copper sulfate pentahydrate. Penta for 5. FeSO4 7H2O, it is green vitriol. Okay, and ferrous sulfate heptahydrate. Hepta refers to 7 water of crystallization है. Another example is CaSO4.2H2O, that is the gypsum. ये gypsum है.
ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ओके, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमी, हाफ के लिए क्या है, हेमी हाइड्रेट, इट इज हैविंग हाफ वाटर मॉलिक्यूल इन इट। ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेटे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, व्हेन वी विल हीट कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, जब आप जिप्सम को हीट करते हैं एट हीट ट्रायंगल साइन 373 केल्विन टेम्परेचर, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर है, इतना ही लिखना पड़ेगा, इतने ही टेम्परेचर पे इसको करना पड़ता है 373 केल्विन टेम्परेचर पे। देन इट विल रिमूव, इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल वाटर रिमूव हो जाता है और हाफ इसके साथ रह जाता है, दैट इज POP बन जाता है, और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल इट विल लूज। ठीक है, सो दिस इज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ओके बेटे, अगर आप इसको 373 से ऊपर हीट कर दोगे, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ गया है ना, इससे ज़्यादा हो गया, तब इसमें से ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देन इट इज सेड टू बी, तब आप इसको क्या कहते हो, डेड बर्न्ट प्लास्टर। क्या कहते हैं इसको, डेड बर्न्ट प्लास्टर। कब, जब आप इसको ओवर हीट कर दोगे। ठीक है, वैसे तो क्या होगा, ये जो POP है, अगर इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल है, अगर आप इसमें और पानी डालोगे तो ये हार्ड हो जाएगा। ठीक है, ये जिप्सम बन जाता है दोबारा से, लेकिन अगर इसमें से ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव हो जाए, देन इट लूजेस द प्रॉपर्टी टू बिकम हार्ड। ओके, आफ्टर मिक्सिंग विद वाटर, फिर ये वाटर के साथ मिक्स करके जो है डेड बर्न्ट प्लास्टर जो है वो वाटर के साथ मिक्स करके सेट नहीं होता है, जबकि POP वाटर के साथ मिक्स होके सेट हो जाता है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो इस तरह से आपका POP बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन हीटिंग जिप्सम एट टेम्परेचर 373 केल्विन टेम्परेचर। तो ओके स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट डज इट मीन कि इसके पास हाफ वाटर मॉलिक्यूल है, पर प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल हो। ठीक है, सो एक्चुअली बात क्या है कि दो कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल्स जो हैं 2CaSO4, दे आर शेयरिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, दो मॉलिक्यूल जो हैं, दो फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट जो हैं कैल्शियम सल्फेट के, वो एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं। सो एक के पास हाफ होगा, लिखने में हम फिर उसको हाफ लिख देते हैं। ओके, या हम इसको ऐसे नहीं लिख रहे कि 2 इधर लगा के, आप ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे, CaSO4 ब्रैकेट 2 1H2O। ओके, H2O। ठीक है, पर हम इसको कॉमनली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन दिस वे ओनली, CaSO4 हाफ H2O, दैट इज द POP। 1 फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट के साथ कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, हाफ। ठीक है, सो अब क्या होगा जब आप इस POP को वाटर में मिक्स करोगे। ठीक है, ये तो आपने किया कि आपने जिप्सम को हीट किया तो आपको POP मिल गया। नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन वी हीट मिक्स दिस POP विद वाटर। सो क्या होगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये क्या करेगा, इट विल गेन 1.5 वाटर मॉलिक्यूल एंड इट विल फॉर्म CaSO4 डॉट 2H2O, दैट इज जिप्सम। तो POP बेटे आपने चेक भी किया होगा, कभी ऑब्जर्व किया होगा, POP को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं वो सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है ऑन मिक्सिंग विद वाटर, दैट बिकम्स जिप्सम, वो जिप्सम बन जाता है। ठीक है, जब POP में वाटर ऐड करते हैं तो इट विल गेन इट्स 1.5 वाटर मॉलिक्यूल जो इसने पहले लूज किए थे ना यहाँ पे, वो ये गेन कर लिए और ये क्या बन गया, जिप्सम बन गया, हार्ड हो जाता है, दैट इज द जिप्सम। ओके, नाउ सी द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक,
It is used for making toys, statues, decorative materials, okay, for making the surfaces smooth. ठीक है, पीओपी की जाती है घरों में, मे बी आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा. फॉर, हाँ जी, ये तो आपको पता होगा बेटे, सेटिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स. बोलते हैं ना प्लास्टर चढ़ा दिया डॉक्टर ने, तो प्लास्टर पीओपी को किस में मिक्स कर दिया, वाटर में, फिर वो हार्ड हो जाता है ना, तो दैट मीन्स वो क्या बन गया, जिप्सम बन गया. ओके, फॉर मेकिंग डिज़ाइंस ऑन द सीलिंग्स और पिलर्स. ठीक है, जो डाउन सीलिंग करते हैं उसमें ये पीओपी यूज़ होती है. ठीक है, फॉर इजी डिज़ाइनिंग करने के लिए. फिर वो हार्ड हो जाता है व्हेन मिक्स्ड विद वाटर. ओके, सो बेटे लास्ट में एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आप बता सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोला जाता है? व्हाई इट इज कॉल्ड सो? वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कॉल्ड सो? वो इसलिए, ठीक है, आई विल टेल यू द आंसर. वो इसलिए इसको बोला जाता है बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम जिप्सम. ये जिप्सम से बनाया जाता है. ठीक है, और जिप्सम जब स्टार्टिंग में ये पीओपी सबसे पहले बनाया गया था, तब जिप्सम ज़्यादा जो था वो कहाँ मिलता था, पेरिस में. अंडरस्टूड? तो पेरिस में जिप्सम मिलता था और जिप्सम से फिर ये प्लास्टर बनाया गया, तो इसको क्या नाम रख दिया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस. ओके, सो today we have finished with our salt topic. We have discussed bleaching powder, baking soda, washing soda, in which we have discussed about the water of crystallization and plaster of Paris. Okay, so this is all about the today's session. Take care. Bye bye.